ہے کہ ہم خدا کے زندگی بخش کلام کو سنیں۔ میرے ساتھ نکالیے لوکا رسول کی لکھی گئی انجیل، اس کا 17 باب اور اس کی 12 آیت سے ہم خدا کے زندگی بخش کلام میں سے آج دیکھیں گے۔ آیت یہاں پر کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی اس کو ملے۔ انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، آئے یسوع، آئے صاحب، ہم پر رحم کر۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، جاؤ اپنے دیہی کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا، اور وہ سامری تھا۔ یسوع نے جواب میں کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ پھر اس سے کہا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ماں نے تجھے اچھا کیا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے بلند آواز سے چلانا۔ کیا ہے؟ اب ذرا دھیان سے سنیے گا، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہاں پر اس گاؤں میں سے گزر رہا ہے، تو وہاں پر اسے کتنے کوڑی ملے ہیں؟ 10۔ انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی، ایسی بات ہے، دل ہی دل میں دعا کی اور کہا کہ یسوع تو کیا کر، ہم پر رحم کر۔ ایسی بات ہے، بڑے سارے لوگ جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم دل ہی دل میں دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر ایسے کام نہیں بنے گا۔ اب یسوع وہاں سے جا رہا ہے، لیکن یہ جو 10 کوڑی ہیں یہاں پر لکھا ہے کہ وہ بلند آواز سے چلائے ہیں۔ کسی آواز سے؟ بلند آواز سے چلائے ہیں۔ بلند آواز سے چلانا، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے رد کیے ہوئے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو گھر والوں کے بھی رد کیے ہوئے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو چرچ کی طرف سے بھی رد کیے ہوئے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو خدام کی طرف سے بھی رد کیے ہوئے تھے۔ لیکن ہو سکتا ہے یہ وہ جھنڈ تھا جو کٹا ہوا جھنڈ تھا، جنہیں دنیا داری نے نکال دیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عقیدوں کو رد کر دیا تھا، دنیا کی تنظیموں کو رد کر دیا تھا، لیکن بے شک وہ دنیا سے دور تھے، لیکن یسوع کو پکار رہے تھے، ہماری طرح۔ جس طرح آج ہم بلند آواز سے کیا کرتے ہیں؟ یسوع کو پکارتے ہیں، تو لوگ ہنستے ہیں، لوگ کہتے ہیں، یہ ہر میسج کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر میسج کے اوپر آمین کہتے ہیں، اور نبی کہتا ہے کہ جو شخص روح القدس سے بھرا ہوتا ہے وہ کلام کی ہر آیت پر آمین کرتا ہے، وہ للکارتا ہے، وہ بلند آواز سے چلاتا ہے۔ جس طرح یہ 10 کوڑی جو ہیں جب وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے دور سے کھڑے ہو کر چلانا شروع کیا، تو یسوع مسیح نے انہیں کیا کہا؟ جاؤ، دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دعا کی؟ ان کا چلانا ہی اس قدر تھا۔ یسوع مسیح نے کہا، جاؤ، جا کر اپنے دیں کیا کرو، کہنوں کو دکھاؤ۔ اب وہ چل دیے، جب وہ جا رہے تھے تو شفا پا گئے۔ کیا ہوا؟ شفا پا گئے، لیکن ان میں سے ایک شخص واپس لوٹا۔
यीशु मसीह के पास जब वो वापस आया तो वो बुलंद आवाज से चिल्लाता हुआ आया, खुदा की शुक्रगुजारी करता हुआ आया। लेकिन यीशु मसीह ने उससे एक बात कही, क्या बाकी नौ किधर है? जिस तरह आज बच्चे चर्च के अंदर आ जाते हैं तो बाकी किधर है? घर वाले किधर हैं? आपको पता होना चाहिए, खुदा ने जब अपने नबी को भेजा था मूसा को, तो उसने जाकर फिरौन से यह नहीं कहा था कि बच्चों को खाली जाने दे, ते बड़ियां नूं इत्थे रख ले। खुदा ने नबी को भेजा था ताकि वो मेरी इबादत करें। ते अज नावां चों एक आया ते बाकी किथे ने? ओ जी फिर घर भी ते कल्ला नहीं ना छड्डीदा। की हुंदा घर नूं? घर पा चलिया किधरे? बाकी किधर हैं? वो क्यों नहीं आए? आपको पता है, बड़े सारे जो लोग होते हैं, मिसेस जो होती हैं, वो बड़ी बड़ी बातें अपने शोहरों से मनवा लेती हैं। शॉपिंग करनी हो, ऐसी बात है, कोई चीज खरीदनी हो तो, लेकिन जब इबादत की बारी आती है फिर वो शोहर को लेकर क्यों नहीं आती चर्च? जब उसे जो है आना चाहिए, उसे भी वहां पर लाना चाहिए ताकि वो भी खुदा के लिए जो है अपनी आवाज को बुलंद कर सके, बुलंद आवाज से चिल्ला सके। और बुलंद आवाज कैसी होती है? जो क्लियर सुनाई दे। अक्सर लोगों को मैं देखता हूं, जब बहनें झगड़ा करती हैं ना, बड़ी आवाज होती है। ऐसी बात है, हो सकता है दूर दूर तक बंदा पे आगे चुप कर बस कर, और लोग सुन रहे हैं, तुम उन्हें ही चुप कराई जाई, दूसरे आनो ना कहीं कुछ। अब सुनिएगा, तो बात का तो ऐसा होता है कि वो चुप ही नहीं करती, तो उसका स्वभाव क्या होता है? शर्मिंदगी। गुस्सा हमाकत से शुरू होता है और शर्मिंदगी पर फिर जब बंदे का गुस्सा उतरता है तो फिर वो पता क्या कहता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, सॉरी। तो पहले सोचें। तो औरतें इस कदर चिल्लाती हैं, इस कदर चिल्लाती हैं, हो सकता है शोर को फिर कोई हाथ ही खाना पड़ जाए, ताई जाके चुप करे। वैसे हो सकता चुप ही ना करे। लेकिन सुनिएगा, हम खुदा का कलाम इजाजत नहीं देता, ठीक है? खादम जो लोग होते हैं ना, वो ना तो गुल कपाट करने वाले होते हैं, ना मारपीट करने वाले होते हैं, जो बाइबल की तालीम है, ठीक है? मैं कि ये बात कर रहा हूं बुलंद आवाज से चिल्लाने की। वैसे हम बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन जब खुदा की बारी आती है तो उस वक्त हमारे गलों से आवाज बाहर नहीं आती, फिर हालेलुया हमारी जबानों से नहीं निकलता। जहां पर चिल्लाना चाहिए, आज इन कोड़ियों से सीख ले, यहां पर लिखा है वो बुलंद आवाज से चिल्लाए। होली जा नहीं होना क्या? जिस तरह के ना, और मैं दिल जी दुआ कर लेना, असं क्या आज फिर काम ते ना जाई, काम ते भी आज यही समझी दिल से मैं काम ते टुर गया। ऐसे हुआ है कभी? रोटी खाने से भूख मिटेगी ना भाई, दिल से यही ख्याल करके मैं रोटी खा ले, ऐसे काम नहीं चलेगा। यहां पर लिखा है वो बुलंद आवाज से चिल्लाए। आपको पता है, जो 9 में से एक वापस आया, शुक्रगुजारी करनी चाहिए थी। यीशु ने कहा, क्या उन 9 ने शिफा नहीं पाई? क्या वो अच्छे नहीं हुए? क्यों वो वापस नहीं आए? आज भी बहुत सारे लोग हैं जो शिफा के लिए खाली आते हैं, जब शिफा मिल जाती है तो फिर वो वापस ही नहीं होंगे। क्यों नहीं आते? कि बजाय कि वो खुदा के लिए अपनी आवाज को जो है बुलंद करें, उस खुदा को पुकारें। और आपको पता होना चाहिए, बनी इस्राइल जब मिस्र की गुलामी के अंदर था तो लिखा है वो चिल्लाए थे ना, खुदा ने उनका हो नाला सुना। बेशक खुदा का यह वादा था, और खुदा अपने वादों में देर नहीं करता, लेकिन उनका आहो नाला, उनका चिल्लाना कहां पर पहुंच गया? खुदा ने नबी को भेज दिया। खुदा ने अपने नबी को भेजा ताकि वो उनको निकाल कर ले आए, ताकि वो खुदा के लिए क्या करें?
इबादत करें, खुदा की मददसराई करें। और यहां पर देखते हैं एक अंधा शख्स था। जब यीशु मसीह गुजर रहा था एक जगह से तो बड़ा शोर था। जब वो चले जा रहा है तेरना सी नजर तो उन्होंने आਉਂਦਾ नहीं, लेकिन सुन तो सकता ही सी। बड़े सारे लोग इस दौर के अंदर भी अंधे हैं। यीशु ने ऐसे नहीं कहा था मैं इसलिए आया कि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। वो देखते हुए भी नहीं देखते। बाइबलें आज हाथ में है, लेकिन हम देखना पर गवारा नहीं करते। छोड़ें, जो हम कहते हैं वो मान लें। आप क्या हैं भाई? यीशु ने कहा मेरी बेड़े मेरी आवाज को, वो किसी गैर की आवाज कलाम नहीं होगी, अपनी तलीमात होगी, अपने रस्म और रवाज होंगे, अपनी रवायतें होंगी, बाइबल के साथ उनका कोई तलक नहीं। लेकिन यहां पर देखिएगा, जब उसने शोर सुना, यीशु जहां पर वो शोर होता है, ललकार आती है, पता चलता है कि जिंदा लोग यहां पर बैठे हुए हैं, ललकारने वाले हैं। वो हर बात पर आमीन करते हैं, वो हर बात पर हालेलुया करते हैं। जिस तरह इन्होंने बुलंद आवाज से पुकारा, किसको? यीशु को। तो वहां पर देखते हैं, उसने पूछा भाई यहां पर कैसा शोर है? उन्होंने कहा यीशु जा रहा है। उसने चिल्लाना शुरू किया, आई इब्ने दाऊद। लोगों ने कहा चुप। खामोश कराने वाले भी बड़े होंगे ने, चुप बोलना नहीं तुसा। उसने और चिल्लाना शुरू किया। उसने कहा खुद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। कैसे अल्फाज थे जो उसके दिल से निकले थे। यीशु मसीह के कदम वहां पर रुक गए। बेशक वो आगे जा चुका था। लोगों ने चुप कराने की कोशिश की, लेकिन जिनकी जिंदगी के अंदर यीशु आ जाता है, फिर वो खामोश नहीं रह सकते। अगर आज ये चुप हो गए तो पत्थर भी, देखिएगा किस तरह वो ललकारते हैं। जहां पर यीशु होता है वहां पर शोर होता है, वहां पर ललकार होती है। बेशक अंधा था, देख नहीं सकता था, लेकिन यीशु को पुकार रहे। दुनिया की नजर में अंधा था, लेकिन खुदा का चुनिंदा था, खुदा का बरगजीदा था, खुदा से प्यार करने वाला था। उसे पता चल गया यीशु जा रहा है। बेशक उसने कलाम पढ़ा नहीं था, लेकिन उसने सुना था कि यीशु मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधे देखते हैं। तो फिर यहां पर देखिएगा कैसे उसने कहा इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, और वो कदम वहीं पर रुक गए हैं। यीशु मसीह ने कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा मैं ये चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं, मैं देख सकूं। विलियम ब्रैनम के पास एक शफाया मीटिंग थी, तो एक शख्स वहां पर दुआ करवाने के लिए आ गया। जब कतार बुलाई गई तो वो उस कतार में आ गया। विलियम ब्रैनम ने जब उसे देखा तो उसने कहा खुदा का शुक्र कर, चला जा, दुआ की जरूरत नहीं है, बस तूने ये कहना है खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं क्योंकि तूने मुझे शिफा दे दी है। जब वो कतार से वापस चला गया तो वहां पर कुछ और नौजवान बैठे हुए थे। उन्होंने उससे पूछा क्या आपने शिफा पा ली है? उसने कहा बिल्कुल, मुझे विलियम ब्रैनम ने यह बात कही है कि तूने ये कहना है खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं क्योंकि तूने मुझे शिफा दे दी है। उन्होंने कहा तेनू नजर आ रहा है? उन्होंने कहा नहीं मनु नजर तो नहीं आ रहा। उन्होंने कहा दोबारा कतार से लग जाओ, दोबारा लाइन में लग जाओ। जब वो दोबारा वहां पर पहुंचा तो विलियम ब्रैनम ने उसे कहा मैंने तुम्हें पहले कहा था कि तुम जाकर खुदा की शुक्रगुजारी करो,
और अब वहां पर जाकर फिर बैठ जाओ और तुमने यही कहना है कि यस्सु मैं तेरा शुक्र करता हूं क्योंकि तूने मुझे शिफा दे दी है। पहला दिन गुजर गया, वो जहां पर जाए खबर बेचने वाला था, आंखों से अंधा था, खबर बेच रहा है चौक के अंदर खड़े होकर, लेकिन बुलंद आवाज से पुकार रहा है, कह रहा है यस्सु मैं तेरा शुक्र करता हूं क्योंकि तूने मुझे शिफा दे दी है। लोगों ने कहा ये तो बात समझने में आ रही है कि ये खबर बेच रहा है और ये साथ क्या कहते हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही, लेकिन उससे पता था नबी ने मुझे ये बात कही है और मैंने नबी की बात पर जो है यकीन करना है। दूसरा दिन आ गया, वैसे का वैसे ही है, लेकिन उसने वो बात नहीं छोड़ी बुलंद आवाज से पुकारने वाली, जो नबी ने उसे कहा था तूने बुलंद आवाज से कहना है खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे शिफा बख्श दी। तीसरा दिन भी आ गया, नजर बंद है। चौथा दिन आ गया, नजर बंद है। पांचवा दिन नजर बंद है, लेकिन वो शुक्रगुजारी करता रहे, वो बुलंद आवाज से चलाता रहे। लेकिन सातवें दिन वो एक हजाम के पास चला गया, जाकर शेव करवाने लगते हैं। वहां पर भी वो ये बात कहते हैं। तो वो जो हजाम होता है वो उसे पता क्या कहता है, तुझे नजर आते है? उसने कहा नहीं। उसने कहा हाँ मुझे एक बात का पता है, खुदा के कलाम के अंदर ये लिखा है और नबी ने ये मुझे कहा है कि तेरी शिफा तुझे मिल गई है, तूने एक बात करनी है कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं क्योंकि तूने मुझे शिफा दी है। अभी उसने आधी शेव की थी। उसने कहा तुझे वाकई नजर नहीं आता? उसने कहा नहीं, लेकिन मेरा ईमान उस कलाम पर है। अभी उसके मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे, उसकी नजर खुल गई। ये है बुलंद आवाज से चिल्लाना, खुदा की शुक्रगुजारी करना, क्योंकि उसे ये बात कहां से मिली थी? कलाम में से। जैसा कलाम यस्सु मसीह ने किया था, और नबी हमेशा जो होता है खुदा का मुंह होता है, खुदा नबी के वसीला कलाम करता है। आपको पता है जिस तरह के बड़े सारे लोगों की अखां ने पर वो वेख नहीं सकते, देखते हुए भी आपको यह पता होना चाहिए कि किस तरह अलीशा के चौगिरद जो थी खुदा के फरिश्तों की बार थी, अच्छी रथ मौजूद थे, लेकिन लोग देख नहीं रहे थे। आपको पता है यूब के घराने के ऊपर खुदा के जो थी पाक रूल कुदस की बार लगी हुई थी। जिस तरह के आज मैंने पहले कहा था, 9 जी घर बैठे होंगे ने तो एक चर्च में बैठा होंगे, घर पिछों कोई ला ही ना जाए। जहां पर खुदा के पाक रूल कुदस की बार होती है, वहां पर इब्लीस की क्या जुर्रत कि वो घर से कोई चीज चुरा ले। ते जिन्ना लुटना है ना घर दे विच सारे ही बैठे होणगे ना, एक बार ही आके उन्हें इंज करना, सारे चुप लुट लुटा के तो उग जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखें, खुदावंद खुदा के डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है। लेकिन यहां पर देखिएगा, जिस तरह उस शख्स ने यह बात कही थी, क्या इब्ने दाऊद क्या कर मुझ पर रहम कर, तो खुदा के कदम वहीं पर रुक जाते। वो चाहता है, वो आज भी वही खुदा है, वो कल आज अब तक शख्स है। नबी कहते हैं अगर उसे एक मुर्दे को जिंदा करना पड़ा तो उसे दूसरे को भी करना पड़ेगा। अगर उसने एक को शिफा दी तो उसे दूसरे को भी देनी पड़ेगी। तो यहां पर आज हम देख रहे हैं कि वो किस तरह बुलंद आवाज से चिल्ला रहे थे। एक औरत थी, पैदाशी अंधी थी, बल्कि मैं लड़की कहूंगा उसे। उसने शफाइया मीटिंग के बारे में सुन रखा था, तो उसे पता था कि विलियम ब्रैनम की मीटिंग्स के अंदर खुदा का फरिश्ता ज़ार होता है। तो रेडियो पर उसके मैसेज वगैरह चलते थे, पैगाम लोग रेडियो पर उस वक्त सुनते थे। तो उसे पता चला कि वो खुदा का ममसू यहां पर आ रहा है। तो उसका इस कदर ईमान था
कि अगर मैं वहां तक पहुंच गई तो मैं क्या करूंगी, शिफा बाजूंगी। और लाखों का हजूम था, और वो जो अंधी लड़की थी वो उस हजूम के अंदर अपने बाप से अलग हो गई, और वो अंधी थी, वो अब अपने बाप को तलाश नहीं कर सकती थी। और इतना बड़ा इज्तिमा था कि लाखों लोग मौजूद थे वहां पर, रात का वक्त था, और वो चिल्ला रही है जिस तरह ये कोड़ी चिल्ला रहे हैं, यस्सु को पुकार रहे हैं। वो चिल्ला रही है, वो कह रही है कि मेरा बाप मुझसे खो गया है, पर मैं अंधी हूं, मैं देख नहीं सकती, कोई मेरी हेल्प कर दे। लेकिन आगे से जवाब क्या है, विलियम ब्रैनम भी जो है उसी रास्ते से आ रहा था, उसी रास्ता से आ रहा है, और वो उस लड़की से टकरा गया रश में। और उसने उस लड़की से पूछा कि तू यहां पर क्या कर रही है। उसने कहा कि मैंने सुना था कि यहां पर विलियम ब्रैनम की बहुत बड़ी मीटिंग है, और मेरा ईमान था कि मैं उसकी मीटिंग के अंदर जाऊंगी तो मैं शिफा पाऊंगी, तो लेकिन मैं अंधी हूं, मैं देख नहीं सकती, और मेरा इस रश के अंदर बाप मुझसे खो गया है। तो उसने उसे एक बात कही, क्या आप उसे खुदा का खादम तस्लीम करती हैं? उसने कहा जी हां। अगर उसने कहा आप वहां तक पहुंच गई तो आप अपनी बनाई को हासिल करेंगी? उसने कहा जी हां। तो विलियम ब्रैनम की आंखों से आंसू गिरना शुरू होते हैं। वो कहता है, अभी उसने 2 अल्फाज कहे थे, लड़की ने चिल्लाना शुरू किया, हां कभी मैं अंधी थी पर अब मैं देखती हूं। यह है चिल्लाना। और उसका चिल्लाना कहां तक पहुंच गया, जिस मकसद के लिए वो वहां पर आई थी उन्होंने दूर से देखा, और वो चिल्लाए, क्या यस्सु हम पर क्या कर, रहम कर। तो वहां पर देखिए, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर मीटिंग्स के अंदर जाते हैं, लेकिन रहते वैसे के वैसे ही हैं। वहां से दुआ करवाएंगे तो अगले पासे रोज जाएंगे, वो केड़े चर्च जानते हो तुसी, पता वो केड़े चर्च जानते हो तुसी, और छाड़ो उस बहादरी नूं, ऐ देखो जा तू दुआ करा। याद रखिएगा, आपका चिल्लाना खुदा सुनता है। अगर आप चिल्लाएंगे नहीं, आप उसको पुकारेंगे नहीं, तो फिर सिर्फ एक ही लफ्ज बोलने की जरूरत है, अंधे शख्स की तरह, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर। तो यस्सु तो चाहता है, यस्सु चाहता है कि आप यहां पर कुछ मांगे तो मैं आपके लिए वैसा ही करूं। आपको पता और भी कोड़ी थे, एक कोड़ी था, जो लोग कोड़ी होते हैं ना, वो मैंने पहले कहा कि जमाने के रद्द किए हुए लोग उनसे नफरत करते हैं, ऐसी बात है। तो फिर वो यस्सु से मिलने के लिए आए थे, पता नहीं कितना उन्होंने सफर तय किया होगा, लोगों की उन्होंने परवाह नहीं की होगी। लोग हो सकता है उस दौर के जो बिशप थे, जो काहिन थे, वो भी यही बात सोच रहे होंगे कहीं इन्फेक्शन ही ना हो जाए हमारी आंखों में, क्योंकि ये कोड़ी है, कोड़ियों को घर से लाके रखा जाता था, और कोड़ियों के लिए ये हुक्म था पुराने अहदनामा के अंदर, जिससे ये बीमारी लग जाती थी वो अपना आधा चेहरा ढांपे रखते और दूर से चलाते थे कि कोड़ कोड़, ताकि लोग अपना रास्ता बदल लें। लेकिन यहां पर ये कोड़ी देखें जो यस्सु मसीह के पास आए हैं, पता नहीं उन्होंने कितने किलोमीटर सफर तय किया, लेकिन वो वीराने के अंदर उन्हें रखा जाता था। लेकिन वो सफर करते करते कहां तक पहुंच गए हैं, यस्सु मसीह तक। उनका चिल्लाना, बेशक वो मैंने कहा दुनिया के रद्द किए हुए थे, वो कटा हुआ झुंड था, लेकिन वो खुदा से प्यार करने वाला था, वो ललकारने वाला था, वो चिल्लाने वाला था।
جو خدا کے لیے للکارتے ہیں، جو خدا کے لیے چلاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے گا وہ جو کوڑی تھا وہ یسوع مسیح کے بارے میں جب سنتا ہے تو وہ آتا ہے اور آ کر پہلا کام جو کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے جی بچوں؟ کیا کرتا ہے؟ سجدہ۔ کسے کرتا ہے؟ کسے ہے سجدہ؟ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرو اور صرف اسی کی۔ وہ یسوع کے قدموں میں آ کر گرتا ہے اور آ کر سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے خداوند، اب اس کا چلانا سنیے گا۔ وہ آ کر کہتا ہے میری نہیں بلکہ تیری مرضی۔ اس نے کہا بتا میں تیرے لیے۔ اس نے کہا خداوند اگر تو چاہے، میں نہیں، وہ کہتے ہیں وہ اب اپنا آپ خدا پر چھوڑ دیتا ہے۔ آج تو لوگ سودے بازی کرتے ہیں، پہلے مجھے جی شفا ملے گی تو پھر جو ہے میں یسوع مسیح کو اپنا آپ دوں گا۔ اس نے کیا کیا؟ بے شک وہ کوڑی تھا، اس کے دل کے اندر کوڑ نہیں تھا، اس کی آنکھوں کے اندر کوڑ نہیں تھا، اس کے کانوں کے اندر کوڑ نہیں تھا، بلکہ وہ دل وچ جی سی نا، جو دل وچ بھریا لباں تے ساڈے دل وچ ہے کی ہے؟ جے ساڈے دل وچ یسوع ہے تے ساڈے لباں تے بھی وہی ہوئے گا۔ جو اندر ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ جے اگر ہمارے اندر یسوع مسیح ہے تو پھر باہر سے بھی یسوع ہی نظر آئے گا۔ لوگ کہیں گے یہ واقعہ ہی اس کے لوگ ہیں۔ تو اسی طرح وہ جو کوڑی تھا نا، اس کا دل صاف تھا۔ وہ آیا، پہلا کام سجدہ، اس نے قبول کیا ہے۔ تو میرے حضور کسی غیر معبود کے آگے سجدہ، 10 حکم یاد ہے نا؟ یاد رکھنا، اس نے پہلا کام سجدہ کیا ہے۔ آج لوگ پہلے دائیں بائیں بھاگتے ہیں، کچھ لوگ اوروں کے پاس جاتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کوڑی کو دیکھیے گا، وہ یسوع مسیح کے قدموں میں آ کر گرے، اسے سجدہ کیا اور کہا خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف۔ اسے یہ پتا ہے کہ یسوع مسیح مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ لکھا جیسا تمہارا ایمان تمہارے لیے ویسا ہی ہوگا۔ ایک عورت اس ایمان کے ساتھ ہی آئی تھی، پتہ ہے کہ میں اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی تو میں، اس کے لیے ویسا ہی ہوا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی دعا کی جائے تبھی۔ یسوع نے کہا تھا جاؤ اپنے دے جا کر کائنوں کو دکھاؤ، اور اس کوڑی کو بھی یہی کچھ یسوع نے کہا ہے۔ کیا وہ وہاں پر آیا؟ اور یسوع مسیح تو یہ چاہتا ہے کہ آپ سب پاک صاف ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے یسوع نو ملنا آسان ہوئے پر کسے بشپ نو ملنا بڑا مشکل ہوئے۔ یسوع مسیح تو جہاں دو ہوتے ہیں وہاں پر آ جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے بشپ کے پاس آپ جائیں تو وہ کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، یہاں پر اس کوڑی سے آج سیکھیں۔ وہ آیا اور اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا خداوند اگر تو چاہے تو، اس نے بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا، اور لکھا ہے کہ فوراً وہ کوڑ سے پاک صاف ہو گیا۔ اور یسوع مسیح نے اس سے بھی یہی کہا تھا، جو نظر موسیٰ نے مقرر کیا اسے گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ آج بہت سے لوگ چلاتے ہیں خالی پر، خالی چلانے سے بات نہیں بنے گی، دل سے لفظ نکلیں اس اندھے کی طرح۔ تو یسوع کہے بتا تیرے لیے میں کیا کروں؟ اس نے یہی کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بینا ہو جاؤں۔ جس طرح اس نے کوڑی سے پوچھا، کوڑی نے یہ کہا کہ خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اب یسوع مسیح کو پتا تھا، اس نے راستہ تبدیل نہیں کیا۔ بدل لیں گے ادھر کوڑی نے، یہ کوڑ دی بیماری منہ نہ لگ جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اسے پتا تھا وہ انسان کا بنانے والا تھا۔ اس نے حکم دیا ہے کہ جاؤ
अपने ते क्या करो, काहिनों को दिखाओ। ये किन्ने वापस आए सर? बाकी 9 कहां थे? उन्होंने शुक्रगुजारी की, उन्होंने खुदा के लिए जो है बाद में बुलंद आवाज से ललकारा, बुलंद आवाज से चिल्लाए। आज भी बहुत से लोग सिर्फ अपनी जिस्मानी शिफा तक आते हैं, लेकिन वो अपना खुदा को नहीं देते। शिफा चाहते हैं लेकिन वो वापस नहीं आते। तौबा का मतलब ही यही है, वापस मुड़ना, खुदा की शुक्रगुजारी करना। उसने मेरी जिंदगी के अंदर यह मौजूदा रुनुमा किया है, मेरी जिंदगी में से ये जो बीमारियां थी निकाल दी हैं। लेकिन आपको नमान कोड़ी के बारे में तो पता होगा, याद रखिएगा कितना बड़ा नाम था उसका, लेकिन वो भी कोड़ी था। तो बताया किसने? एक बच्ची है जो कि सीर होकर वो उसे लाए थे, सीर करके अपने आका के घर के अंदर वो खिदमत करती थी। चलाते कैसे हैं? मैं हमेशा कहता हूं, अगर हम कलाम को सुनकर अपने तक रखते हैं तो हम दबाते हैं, बल्कि जुगाली करनी है, चिल्लाना है, दूसरों तक यह बात जानी चाहिए। यीशु को पुकारें तो वो आपकी दुआ का जवाब देने वाला है। तो वो सुनकर वहां पर बैठा नहीं रहा। जब उस बच्ची ने अपनी बीबी से यह बात कही तो वो सुनकर वहां से रवाना होता है। किसके पास आता है? नबी के पास। तो नबी क्या कहता है? वो तो यही समझता होगा कि मैं क्या करूंगा, जब जाऊंगा तो मैं तो एक बहुत मोअज़्ज़ज़ आदमी हूं, मैं बहुत मीर तरीन आदमी हूं, जब मैं उसके दरवाजा पर जाऊंगा वो मेरा इस्तकबाल करेगा। नबी अंदर से नहीं निकला। नबी के पास वो कलाम था जो नबियों का मोतबर कलाम था। उसने अंदर से कह दिया कि जा, तू क्या कर, यरदन में 7 गोते मार। कितने कोड़ी थे? 10 कोड़ी थे, एक वापस आया। ऐसी बात है। लेकिन उसने कलाम पर बूढ़ नहीं बढ़ाया। किसने? नमान कोड़ी ने। उसका पहले यह ख्याल था, वो कलाम को सुनकर आया था जिस तरह कोड़ियों ने सुना था, और वो यीशु मसीह इस रास्ता से आज गुजरने वाला है। तो वो उस रास्ता पर आकर खड़े थे और दूर से बुलंद आवाज से उन्होंने पुकारा है। तो वो नबी के दरवाजा पर आया है, लीशा के। जब वो वहां पर आया तो उसने आकर जब दस्तक दी, अंदर से पैगाम आ गया, जाकर दरिया यरदन में क्या कर 7, जैसा मैंने पहले कहा था ना, एक शख्स विलियम ब्रनम के पास आया था, 6 दिन कुछ नहीं हुआ, 7वें दिन उसकी आंखें खुल गई। नबी जो कलाम करता है खुदा उसका पाबंद होता है। क्यों? क्योंकि खुदा खुद ही तो नबी के वसीला कलाम करता है। अब यहां पर देखे, उसने कहा इससे वाफर दरिया तो अच्छे दरिया मेरे इलाका के अंदर बहते थे, पर खुदा ने नबी के वसीला कलाम किया था। उसके नौकर ने यह बात कही नमान से, अगर मेरे आका नबी ने यह बात कही है तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आप दरिया यरदन के अंदर 7 गोते मारे। और वो बात सुनता है, नबी की कलाम को कबूल करता है और चल पड़ता है। और जब वो वहां पर जाता है तो क्या होता है? पहला गोता मारता है, वैसा ही होता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। नबी ने कहा था 7 गोते मारने हैं। वो नबी की बात को पकड़े हुआ था, कलाम पर अमल कर रहा है। दूसरा गोता मारा, वैसे का वैसे ही है, कोड अभी तक नहीं गया बदन से। तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, जब 7वीं मर्तबा वो गोता लेता है तो ऊपर आता है तो उसका जिस्म बच्चे की तरह नरम और मुलायम हो जाता है, कोड जाता रहता है। क्यों? क्योंकि कोड उसके ऊपर था, अंदर नहीं था। कोड कहां था? उसके बदन पर था, उसके दिल के अंदर कोड नहीं था। और फिर वो वापस आया नबी के पास, जिस तरह वो कोड़ी यीशु मसीह के पास आया कि शुक्रगुजारी करे।
وہ واپس آتا ہے, الیشا کے پاس آتا ہے, میں تیرے لیے بہت کچھ لایا ہوں, خدا نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے اور میں تیری نظر کچھ کرنا چاہتا ہوں. لیکن آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ خدا کا دیا ہوا سب کچھ میرے پاس ہے, جو کچھ لایا اسے اپنے ساتھ واپس لے جاؤ. خدا کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے پیار نہیں کرتے, نہ دولت سے نہ دنیا کی چیزوں سے. تو پھر دیکھ لیں, ذرا لالچ کے بارے میں بتانے لگا ہوں. جو دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں, اس کا الیشا کا ایک شاگرد تھا. کون تھا؟ بہت بڑا نام تھا, جس طرح یسوع کا شاگرد یہودا تھا. ٹھیک ہے, کون تھا؟ جہازی الیشا کا. اب یاد رکھیے گا, تو اس کے اندر لالچ آ جاتا ہے. آیا نا لالچ؟ جو دل میں ہوتا ہے, یسوع نے کیا کہا, وہی منہ پر آتا ہے. کہتا ہے یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری, پر ان کے دل مجھ سے, پر گل تے دل دی ہے. جو دل کے اندر ہے, دل کے اندر کون ہے؟ یہ آپ کو پتا ہے کہ دل جو ہے یہ تخت کی نمائندگی کرتا ہے. اس وقت تخت کہاں پر ہے؟ یہ تخت ہے جہاں پر یسوع بیٹھا ہوا ہے. ایسی بات ہے, یہ دل ہے. پرانے عہد نامہ کے اندر جو عہد کا صندوق تھا اس کے اندر کلام تھا. تو آج کلام کی صورت کے اندر یسوع مسیح روح کی صورت میں, جس میں مسیح کا روح نہیں وہ مسیح کا نہیں. اب یہاں پر دیکھیے گا کہ یہ کس طرح واپس آیا ہے نبی کے پاس, شکر گزاری کرتا ہوا. لیکن جہازی جو اس کا شاگرد تھا, جو نبی کا شاگرد تھا, کون تھا؟ الیشا کا شاگرد تھا, بڑا نام تھا. ایسی بات ہے, تے لالچی بھی نال ہی ہوندے نے. ہر بندہ بائبل اٹھانے والا خدا کا خادم نہیں ہوتا. کچھ لوگ ان کا پیٹ خدا ہوتا ہے, پیسے کی خاطر خدمت کرتے ہیں, شہرت کے لیے خدمت کرتے ہیں, لوگ ہمیں جانے. تو یسوع نے کہا جو اپنی عزت چاہتا ہے وہ تو میرے لائق ہی نہیں ہے. جو کلام کو نہیں جانتا وہ ہمیں کیوں جانے. تو یہاں پر دیکھیے گا, جہازی بھاگتا ہے, انج پاسٹر بنے ہیں, نبی دا شاگرد, نا بڑا بڑا ہے. تے اندر کون سی بیٹھا؟ چودھری صاحب. کون بیٹھا سی؟ نبی کا شاگرد تھا, پر اندر وہ دے لالچ سی. اصل کوڑ ہی یہی ہے. اور وہ بھاگتا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے آقا کے ہاں کچھ مہمان آ گئے ہیں, مجھے نبی نے بھیجا ہے. جھوٹ دیکھ لیں, مجھے نبی نے بھیجا ہے کہ کیا کر, جو کچھ تو لایا اس میں سے کچھ مجھے دے دے. اس نے کہا خوشی سے لے جا. کہ پھر سارا کچھ لے لو کہ اپنے گھر چھڈ کے تے آ کے نبی دے کول کھلو گیا. نے کہا جہازی تو کہاں تھا؟ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب بھی نہ ہوتا ہے, جو پہلے پہ اس کی ہر ایک چیز کو دیکھ لیتے ہیں. اور یہاں پر دیکھیے گا, پھر جو نبی نے کلام کیا اس نے کہا اب یہ کوڑ تجھے اور تیری نسل کو ہمیشہ لگا رہے گا. اور وہ اسی دم کوڑی ہو گیا. کوڑ کیا ہے؟ آج انسان کو کوڑ کھایا جا رہا ہے دولت کی صورت میں. انسان دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو یہی کوڑ ہے. بجائے کہ وہ کلام کے ساتھ کھڑا رہتا, نبی کے میسج کے ساتھ کھڑا رہتا, تو وہ کبھی کوڑ اس کو چھوتا نہ. وہ دولت کے پیچھے بھاگا, دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگا, اس سے اس نے کوڑ کو حاصل کیا. آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے دل کے اندر کوڑ ہے. کیا ہے؟ کہاں پر کوڑ ہے؟ تے پھر یسوع مسیح نے پتہ کیا کہا تھا؟ ہر بری چیز کہاں سے نکلتی ہے؟ انسان کے اندر سے. ہر خیال کہاں سے نکلتا ہے؟ دل سے. تو پھر اسی لیے اگر تو اپنے دل کی لکھا خوب حفاظت کر.
क्या है? अपने दिल की, क्योंकि अगर तेरा दिल कामल है तो तू पूरा ही कामल है। हम चाहते हैं कि मुकम्मल तौर पर उस कोड़ी की तरह जो यीशु मसीह के पास वापस आया और बुलंद आवाज से चिल्लाया था कि हौली हौली आया, छोपली छोपली किसी को पता ना लग जाए। पता लगा भी बंदे ने शिफा पाई, बुलंद आवाज से ललकारता हुआ आ रहा है और आकर यीशु का शुक्र अदा किया है। आज बहुत से लोग जो हैं शिफा भी पा जाते हैं, वापस भी नहीं आते, गवाही भी नहीं देते, अपना आप भी नहीं खुदा को देते। लेकिन यहां पर देखिएगा, आज जो कोड़ की सूरत है इससे बचिएगा। सबसे बड़ा कोड़ कौन सा है? जो हमारे अंदर लालच का है। 10 हुक्मों के अंदर लिखा हुआ है ना, बगाने दे माल दा लालच है ते असीं मुड़ने, असीं तो उस घर जांदे नहीं जिहड़ा चंदा ना दे, ਉਹ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਂਝ ਬੜੇ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਚੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਗੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਭੈਣ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5000 ਦਿੰਦੀ ਏ, ਉਧਰ ਪਾਦਰੀ ਹਰ ਤਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਕੋਈ 100-200 ਦੇਗੀ, ਉਹ ਬਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਓ ਉੱਥੇ। याद कीजिएगा, खुदा को ऐसे लोगों की जरूरत है जिनका पेट खुदा ना हो, बल्कि क्या हो, उन जिंदगियों की परवाह हो, उन जिंदगियों की फिक्र हो जो नबी के साथ मिलकर कहने वाले हों कि जा तूने क्या कहना है, खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने मुझे शिफा दी है। हर बात में शुक्रगुजारी करें तो आपके लिए कोई बात नामुमकिन ना होगी। तो फिर आज हासिल कलाम यही है कि हम क्या करें, इस कोड़ से बचिएगा जो जहाजी को लगा था, बल्कि हम उस कोड़ी की तरह यीशु मसीह के पास आए और उसकी तरह ललकारते रहें, उसकी तरह पुकारते रहें, उसकी तरह चिल्लाते रहें। चिल्लाने पर बड़ा मैसेज है, याद रखिएगा। लेकिन मैं अब उसकी तरफ आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि पता है जो लोग शहर के अंदर ये जो गुनाह होते हैं इस पर आहो नाला करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन मैं मैसेज को यहीं पर खत्म करता हूं क्योंकि वक्त को देखते हुए, ठीक है। तो खुदा ये चाहता है कि हम अपने खुदा के लिए हमेशा क्या करें, चिल्लाएं और बुलंद आवाज से चिल्लाएं, हर बात पर आमीन करें, हालेलुया करें, क्योंकि पता चलता है कि हमारे अंदर वाकया ही हमारे दिल के अंदर कौन है, जो अंदर है फिर वही लोगों पे आएगा। कौन है? हालेलुया। आवाज ही नहीं निकलती, ये हो गया। ओ उनसे सीख लें आज, कोड़ियों से। और कोड़ी भी है फिर भी चिल्लाते हैं, दुनिया का रद्द किए हुए हैं, दुनिया से दूर हैं, लेकिन यीशु के करीब है, फिर भी वो यीशु को पुकारते हैं, आ यीशु क्या कर हम पर। तो यीशु आज भी मौजूद है, वो तो बदलता ही नहीं जे। इंसान बदल जाता है पर खुदा नहीं बदलता, वो कल आज अब तक यकसा है। अगर उसने उन कोड़ियों को शिफा दी है तो आज वो, अगर हमारे अंदर कोई लालच की ऐसी स्पिरिट है, कोई ऐसी बदरू है जो कि खिदमत के अंदर रुकावट है, हमारी जिंदगियों के अंदर रुकावट है, खुदा के कलाम के अंदर रुकावट है, खुदा से दूर करने की रुकावट है। जिस तरह जहाजी गुमराह हो गया, जिस तरह यहूदा गुमराह हो गया, इसी तरह आज भी ऐसी तस्वीरें पाई जा रही हैं जो खुदा के लोगों के चौगिर्द घूम रही हैं ताकि उन्हें गुमराह करें। लेकिन आप हमेशा बुलंद आवाज से अपने खुदा के लिए चिल्लाते रहें। सो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।